Open your life to the living God, for the faithful God wants to do powerful things in your life. Time and again you miss the mark. You understand? Time and again you miss the mark because you shift your focus. The Lord does not want you to shift your focus. The Lord wants you to focus on Him. You are bothered about too many things. You are entangled with too many things. You are putting yourself into too many things, and that's why you come back to square one always. Understand what the Spirit of the Lord is telling you? Is it true? The Lord wants to bring you freedom and deliverance. Listen to the Lord. Listen to what His promptings through the power of the Holy Spirit is speaking to you right now through the prophets. As you listen, as you obey, this year 2025 will not be the same as the years have passed in your life. There are years which have passed in your life which have been unfruitful. Understand? Listen to what I'm trying to spell out loud and clear. You have experienced unfruitful years till 2024. You've entered 2025. You've come here for the service. God wants to do something beautiful in your life. Stop being distracted and putting yourselves entangled in many things. Today, God of hope, God of restoration, God of deliverance, God of freedom is speaking into your life. As a prophet, I want you to understand what God wants to do into your life in the year 2025. Forget about what has happened up to 2024. If you listen, if you concentrate, if you focus, if you don't put yourself into too many things, you will experience smooth sail in this year. Understand? Smooth sail in this year in the power of the Lord, in the presence of the Lord. The Lord wants to bring deliverance in your life. I want you to kneel down in His presence. Lift up your hands, lift up your hands, lift up your hands. Call Him into your life, into your mind. Ask Him to renew your life and ask Him to deliver you from that entanglements that you've been, those unfruitful years that you've experienced. Get up. 31st December last month, before the year began, you experienced some news which was not peaceful, which was not as per your expectation, and you were disturbed and you were worried what will happen in the next year. But God knows how to bring that liberation, that freedom in your life. Did this happen on the 31st? Did this happen in your life in 31st of December? Amen. The Lord wants to deliver you and free you. Just focus. Place everything at the feet of the Lord. The Lord wants to deliver you. Whatever be that news, it does not matter. Did you get it? It does not matter. God wants to bring that liberation and freedom. Open your life and open this year before the Lord. The Lord wants to do mighty things in your life. I see a door and the door is opening and closing, opening and closing. And every time you're trying to get out that door, move out that door, the door closes. You're trying to move out, you're trying to go, but it's just not happening. The moment you're trying to go, the door is closing, the door is closing. If you are connected to us, Amen. If you are connected to us, Amen. Amen. You have gone to many places, you have tried everything. Amen. Now be connected and you see what the Lord is doing. Amen. Amen. 2024 was not as per your will. Amen. A lot of things did not happen as per you expected to happen. Amen. Amen. You expected a lot of things to happen, but it is not happening. Amen. But if you believe in the Lord and Amen. what God is calling you to Amen. obey the Lord, Amen. 2025 is not going to be the same. Hallelujah. The door will open. Amen. The door is opening, closing. But Amen. if you connect, Amen. the door will open. Amen. God has a lot of plans for you. Amen. Cling to the Lord. Amen. The Lord is not happy to see you where you are. Amen. It doesn't matter what people think about you. Amen. The Lord has a plan for you. Amen. Cling to the Lord. Amen. And miracles will happen. Amen. Amen. Did it make
Lord wants to liberate you, free you. Don't live a life of despair and pain. Live a life as per the will of God and surrender everything at the feet of the Lord. Surrender yourself to the living God, because the Spirit of God is going to talk to you through His prophets. You've been looking for direction, you've been looking for guidance, but it does not come even near to you. And there has been a kind of a delay for more than a year and a half, that you're looking for things to recover, to move in your life, but they have not been moving. There has been stagnancy that you've been experiencing for a long time. Today the Spirit of God is talking to you, and as the prophets are speaking over your life and prophesying, there's a door which is closed for a long time is opening in the name of Jesus. That unnecessary sickness and pain that you go through and the anxiety that you go through, the Lord is delivering you at this very moment. You've been through various prayer services, but today the Lord is calling and speaking to you and highlighting and spotlighting to you, because He wants you to receive Him as your personal Savior. He's touching your heart, He's touching your mind at this very moment. There's some kind of a numbness that you experience in your body off and on for more than 3 months now. The Lord is healing you and setting you free at this very moment. The deliverance is coming, the freedom is coming, the glory of the Lord is manifesting over your life. Understand, these are not ordinary moments, but these are extraordinary moments in your life, that the favor of the Lord is locating you. You missed accidents in the past more than 3 times. The Lord was there before you. Do not be found among the wicked. Learn whom you need to spend time with and whom you don't need to spend time with. And as you obey and listen, you are moving forward in the name of Jesus. You have been backstabbed, you have been cheated, people have taken advantage of you, been trying to make you understand nothing is happening. But remember one thing, God loves you and God has great plans for you. It doesn't matter what people think about you, what matters is what God thinks about you. Hallelujah. You have not come here by chance. Amen. Because the Spirit of God has brought you here. Yes. There was a lot of difficulty, a lot of confusion even while you were coming. Amen. You were even in 2 minds whether to come or not. You also tried up, like you felt that my life is such a horrible life. You also thought of ending up your life. You came to a situation where you thought, I better end up my life. But remember one thing, your life doesn't belong to you, your life belongs to God. Amen. God created you and He created you for a purpose. Amen. And even as we are here prophesying over your life, Amen. miracles are happening Jesus. in the name of Jesus. Amen. Some bondages are breaking in your life. Amen. Some curses are breaking. There are some things which are happening in your life which have not been happening in your life, but happening even with your ancestors, your parents, your Amen. grandparents. Amen. And even as you've come here right now, Amen. I see the Spirit of God setting you free right now. Amen. Amen. Freedom is what we speak in the name of Jesus. Lift up your hands, lift up your hands, and talk to Jesus and allow the Lord to touch you. The Lord spoke a lot of details about your life, and you are come here for the first time. Is it yes? And all the details of the life that the Lord spoke and revealed to the prophets, is it true? Amen. Now why did the Lord give you details and speak the details? So that you may know you are before a living God, Jesus, and before His prophets who are speaking into your life. And if you listen to God and listen to His prophets, your life will never be the same again. Hallelujah. Are you ready to do it? Amen. Say, Jesus, I come into my life and have your way. आपका जो हिस्सा था क्या है? बहुत लोगों ने चोरी किया, कोशिश किया, आपकी खामोशी की वजह से बहुत कुछ आपके हाथ से निकल गया। जवानी से आज तक आपकी खामोशी के लोगों ने आपका फायदा उठाया और आपकी खामोशी की वजह से बहुत कुछ आपके हाथ से निकल गया। बहुत कुछ जो आपका हिस्सा था भी वो भी निकल गया। और प्रभु कहते हैं आप अभी आज प्रभु के घर में हो, सब कुछ प्रभु के चरणों पे लाते हैं।
हमारे वचन में लिखा है जो भी शैतान ने चोरी किया है Amen. पता कैसे वापस लाना Amen, amen. हम जब विश्वास करेंगे तो जो भी शैतान ने चोरी किया है वो प्रभु वापस लाएगा। Hallelujah, प्रभु hallelujah. मुझे आपकी किस्सा दिखाता है, Amen. पॉकेट दिखाता है Amen. और किस्से में एक नाम है, किस्से में पता नहीं क्या है, डायरी है आपके किस्से में क्या है, ये जो किस्से में Amen. जो भी डायरी है कागज है कुछ भी तो रहेगा Amen. उसमें एक नाम है, Amen. वो नाम आपके सबसे बड़े दुश्मन का नाम है। Amen, amen, amen. और प्रभु कहता है इस वक्त Amen. मेरे चरणों पे लाके Amen, amen. लड़ाई मेरी है Amen. और जब प्रभु लड़ाई करेगा तो Amen. जीत आपकी होगी। Amen, amen, amen. Amen. जो भी नाम है प्रभु मुझे कुछ पता नहीं Amen. पता था आपके Amen. दुश्मन का नाम है आपके किस्से में। Amen, amen. लड़ाई प्रभु करेगा Amen. जब आप प्रभु के हाथ पकड़ के जाएंगे Amen. तो जीत आपकी होगी। Amen. Amen. सोचने की जरूरत Amen. नहीं। Amen. प्रभु को पता है कैसे आपको संभालना Amen. है। Amen. जो डॉक्टर्स कहते हैं Amen. जो दवाई कहता है वो नहीं सोचता है, जो प्रभु कहता है वो सोचता है। Amen. क्योंकि बनाने वाला आपको वो जिंदा रखता है। Amen. Amen. आप विश्वास कीजिए और देखिए आपका जीवन कैसा का वैसा दिखेगा। Amen. हो रहा है एक बार क्या आपके जीवन में आप आशीर्वाद देखना चाहते हो? क्या चाहते हो आप? क्या आपका विश्वास है? क्या आप तैयार हो? अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए। शब बरकतर 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 हे बरंदरियल बरकतर 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 हे बरंदरियल बरकतर। इस वक्त सर से लेके पैर तक हर एक बदन के पार्ट में प्रभु फुर्ती ला रहा है और छुटकारा ला रहा है। शब बरकतर बरकतर। गए साल आप बहुत बीमार थे, गए साल आप बहुत बीमार थे और आपको पता भी नहीं था ये साल आप देखोगे क्या नहीं। ये साल आपको प्रभु ने रखा क्योंकि उसको प्रभु ने आपको इस कलीसिया में लाया, भविष्यवक्ता से बात कराया और आज से आप याद रखिए आपका जीवन आगे की ओर बढ़ते ही जाएगा और आशीर्वाद होगा और वो बंधने, वो जंजीर, वो जकड़, वो श्राप इस वक्त यीशु के नाम से टूट कर उछल रहा है यीशु के चरणों पर। हालेलुया, हालेलुया। बहुत टाइम से आप भागे नहीं, बहुत टाइम से आप भागे नहीं, आप भागे ना, भागे 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 बोला तो चलना नहीं है। सुनिए इधर 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 भागना मालूम है आपको? ऐसा भागो भागो भागो, जोरदार भागो, जोरदार। चलने का नहीं बोल रहे, भागने का बोल रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। श्रम करते रहिए, श्रम करते जो भी भविष्यवक्ता ने बोला है, भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की है, क्या ये सच है? प्रभु बताता है सब कुछ और प्रभु आपके जीवन पर आशीर्वाद। कितने टाइम बाद आप ऐसे भागे? कितने टाइम बाद आप ऐसे भागे? कितने टाइम बाद, मतलब कितने महीने, कितने साल, कितने टाइम बाद? पहली बार ऐसा भागा? पहली बार बोला तो जीवन में पहली बार भागा। हालेलुया। जो बदन की तकलीफ जो आपके जीवन में थी वो सब कुछ प्रभु ने छुटकारा दिया। हालेलुया। अपने हाथ उठाकर प्रभु के चरणों पर सब कुछ समर्पित कीजिए। शब बरकतर बरकतर पेट में जो तकलीफ है, जो दवाई पानी से नहीं जा रही है, वो प्रभु इस वक्त निकाल रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? क्या आप समझ रहे हो? मैं इस वक्त होने दे प्रभु बरकत के जीवन पर, जैसे ही आपके चरणों पर अपना जीवन समर्पित करते हैं। एक बार बैठ दीजिए, बैठ दीजिए, बैठ बैठ। ऊपर 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 वापस। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, प्रभु की स्तुति और तालियां। अगर आपके जीवन में कुछ आज अभी अच्छा हो गया, जब भविष्यवक्ता ने जो ऐलान किया और जब आप भागे, कुछ तो अगर आपके जीवन में अच्छा हो गया तो ही ताली बजाइए। हो गया? हालेलुया। जैसे हम बात कर रहे थे, आपको बहुत से
प्रश्न जो आपके मन में था उसका उत्तर मिल गया। Amen, amen, amen. प्रभु जब आप बात करें प्रभु Amen. आपके मन में बहुत से प्रश्न थे कि मेरा ये क्यों नहीं हुआ, Amen. वो क्यों नहीं हुआ, Amen. और आपको उत्तर मिल गया। राइट कनेक्शन, Amen. राइट कनेक्शन बहुत ज़्यादा। Amen. Amen. और आपके कनेक्शंस की वजह से कुछ चीज आगे नहीं बढ़ी। Amen, amen. आपने ये साल में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ नहीं हुआ, Amen. बहुत चीज इनकम्प्लीट थे Amen. क्योंकि कनेक्शन गलत है। Amen. कनेक्शन गलत है Amen. इसलिए वो चीज आगे नहीं बढ़ा, Amen. रुका हुआ है। Amen. आपके जो शर्ट पे जो पक्षी है ना उड़ रहे हैं। Amen. अगर आपकी कनेक्शन सही रह गया आप उड़ेंगे। Amen. अगर आप कनेक्टेड सही रह गए तो Amen. अगले साल आपके पक्षी Amen. 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 Shaba barakata ya barakata ya barakata ba. In tori आप एक ही लेवल पर बहुत वक्त से अटके पड़े हुए हो, एक ही लेवल पर बहुत वक्त से अटके पड़े हुए हो। जैसे भविष्यवक्ता ने बताया, जैसे पक्षी आपके शर्ट पर है, वैसे प्रभु आपको उड़ाना चाहता है, आपको नेक्स्ट लेवल पर लेना चाहता है और आपके आगे की ओर ढकलना चाहता है प्रभु। आपने जैसे प्रभु का सुना और उसके भविष्यवक्ता का सुना, ये साल आखिर तक आप आशीर्वादित होंगे और अगले साल नए तरह से नए पड़ाव में आप प्रवेश करोगे। नए पड़ाव में सुनिए क्लियरली, मैं बोलता हूं, आप आकर पूछ सकते हैं अगर अगले साल आप नए पड़ाव में अगर आप प्रवेश नहीं करें, उसके लिए अपना जीवन समर्पित करो, पवित्रता से जियो, सही कनेक्शन रखो और देखिए प्रभु आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में क्या करता है। अपने हाथ उठाइए इस वक्त प्रभु के सामने। शब होने दे इनके जीवन में जो तू करना चाहता है, जो नया पड़ाव, जो अगला हिस्सा जो उनको आपके इनके जीवन में जो बरसाना चाहता है। शब बोलिए पिता मैं रिसीव करता हूं, मैं रिसीव करता हूं। फादर आई बिलीव, फादर आई रिसीव इन जीसस नेम। हे आप दुविधा में थे, आज यहाँ पर आएंगे कि नहीं आएंगे, आप दुविधा में थे, आप कंफ्यूजन में थे, क्लैरिटी नहीं था। प्रभु ने आपको खींच के लाया, प्रभु ने आपको खींच के लाया क्योंकि एक कारण है। जब भविष्यवक्ता के मुंह से एक भी शब्द आपके जीवन में गिरता है और उसको अपना के उस तरह से आप आगे बढ़ते हो, आपके जीवन में वो द्वार खुलते हैं। और आज वो द्वार प्रभु खोलना चाहता है। अगले पड़ाव आपके जीवन पर आ रहा है, अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु के चरणों पर समर्पित कीजिए। कुछ तो ओपिनियन भी आपको चाहिए, कुछ तो ओपिनियन या कुछ तो सजेशन या गाइडेंस आपको चाहिए। प्रभु आपको उसके वचन के द्वारा बात कर रहा है और आपको वो कंफ्यूजन से निकालकर ऑर्डर में लेके आएगा। राइट साइड में यहाँ से ये जो कमर का सेक्शन है, यहाँ से लेके शरीर के छाती के एरिया तक, कमर का सेक्शन से लेके छाती के एरिया तक, इतना एरिया में बहुत बार दर्द होता है। होता है क्या? ये होता है बहुत बार होता है। प्रभु ने बताया है इस वक्त आपको छुटकारा देगा। ये इतने एरिया में, ज्यादा एरिया में नहीं, ये कमर के एरिया से छाती के एरिया लाइन में आपको बहुत बार दर्द होता है और डर उठते हैं आप, कुछ तो होगा। क्या डर है मालूम आपको? बहुत बार आपको डर लगता है कि पैरालिसिस होगी। क्या ये आप सच है? प्रभु इस वक्त छुटकारा दे रहा है और उजाला दे रहा है। हर एक चीज प्रभु बात करता है, वो बात करने वाला प्रभु है। आप सच्चे भविष्यवक्ताओं के सामने खड़े हैं जो ऐलान कर रहा है, जो चीजें आपको पता नहीं है वो बता रहा है। छुटकारा होने दे आपके जीवन में, होने दे। आज मुझे एक कहना है, अपने घुटने टेकिए प्रभु के सामने, प्रभु के सामने आप घुटने टेकते, हाथ उठाइए, बोलिए प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में कार्य कर और मैं मेरा जीवन तेरे चरणों पर समर्पित करता हूँ। Lord, do what you want to do as per your will in the life of our brother and his family. Be it unto him according to your word and according to your will. यीशु के नाम से प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया। आपके दिल में जो डर है, आपको सोच होने वाला है, वो नहीं होगा, लेकिन जो प्रभु चाहता है सिर्फ वो और सिर्फ वही होगा, क्योंकि वो खुदा है, वो जिंदा खुदा है
of Jesus. Amen. सिर्फ वही Amen. वही होगा Amen. जो शैतान चाहता है, Amen. जो आपके Amen. दुश्मन चाहते हैं, Amen. वो नहीं होने वाला। लेकिन जो जिंदा खुदा चाहता है, वो आपके जीवन में होने वाला है। बोल यार भाषा यही वो वक्त है जहां पर आपके जीवन में प्रभु चंगाई ला रहा है, प्रभु आपके जीवन में छुटकारा ला रहा है। अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए और जो प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है वो उसको करने के लिए इजाजत दीजिए। वो कभी जबरदस्ती नहीं करता। अपने दिल के द्वार खोलिए और उसको आपके जीवन में आने दो और आपके जीवन में कार्य करने दो। आपके पैर का दर्द प्रभु इस वक्त छुटकारा देना है। इस वक्त आपके जीवन से वो दर्द निकल रहा है। उड़ी मारिए, यीशु के नाम से उड़ी मारिए। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? उड़ी मारिए, उड़ी मारिए, उड़ी मारिए। जंप 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 इन द नेम ऑफ जीसस। जंप 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 प्रभु की पवित्र आत्मा की ताकत में आप उड़ी मारिए, उड़ी मारिए, उड़ी मारिए, उड़ी मारिए, उड़ी मारिए, उड़ी मारिए। Jump in Jesus' name. Let there be healing and deliverance as you believe in God and trust in Him. उड़ी मारते मारते आगे जाएंगे। ऐसे ही नहीं होगा, उड़ी मारते मारते आगे जाएंगे। जाइए 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 जाइए, टर्न मारिए, टर्न मारिए, टर्न मारिए। वापस उड़ी मारते मारते आना है, चलना नहीं है, उड़ी मारते मारते आना है। यहाँ पर कुछ भी नकली नहीं होता है। यहाँ पर जैसे हम सच्चाई और आराधना में उसकी आराधना करते हैं, पूरी तरह से चंगाई आपके जीवन पर आती है और बरकत आती है। हालेलुया। कितने देर बाद, कितने साल बाद, कितने महीने बाद, कितने दिन बाद आपने ऐसे उड़ी मारी? बोलिए, कितने दिन, महीने, साल या जो भी है? कितना टाइम हो गया? टाइम मतलब महीना, साल हो गया, बहुत साल हो गया। इस वक्त यही होता है जिंदा खुदा और उसके कलीसिया में, उसके घर में, कि आपके जीवन पर बरकत लाता है। हालेलुया। अगर आप इतना सब चीज प्रभु आपके जीवन पर कर सकता है तो आगे के जो जिंदगी के जो पड़ाव आपको पार करने हैं वो आपके जीवन के पड़ाव आपको पार नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्यों बोल रहा है मैं आपको ऐसे? भविष्यवक्ता क्यों आपको ऐसे बोल रहा है? क्योंकि प्रभु कह रहा है भविष्यवक्ताओं के द्वारा, विश्वास बढ़ाओ। Increase your faith. The Lord is speaking into your life about the future and the moments of your life. प्रभु आपके जिंदगी के आगे के पड़ाव के बारे में बता रहा है कि आप वो पड़ाव पार कर सकते हैं अगर आप अपना विश्वास और भी बढ़ाओगे। जब आप जंप मारे थे, यीशु ने मुझे एक गाना याद किया। इंग्लिश में एक गाना है, I'm dancing on the grave I once lived. जो शैतान ने कब्र बनाया, आज हम उस कब्र पे हम नाच रहे हैं। और आज वो कब्र पे आप जंप मारे। शैतान की योजना थी, आज वो शैतान की योजना पे आप उड़ी मारे। आप अंदरूनी बातें समझिए। जब ग्रेव और जब हिंदी में क्या बोलते हैं, कब्र के बारे में बोलता है, शैतान आपको खींचना चाहता था। भविष्यवक्ता सच्चा बोलेंगे, शैतान आपको खींचना चाहता था। आज प्रभु ने आपको बचाया है और विश्वास बढ़ाकर आप आगे बढ़ते जाओगे। आप अगले साल भी आशीर्वादित देखोगे। चाहिए कोई कोर्स के बारे में आप सोच रहे थे, कोई कोर्स करने का या कुछ आगे बढ़ने की बढ़ोतरी के बारे में सोच रहे थे, प्रभु उस पर आपका आशीर्वाद आप पर उस चीज पर बरसाने वाला है। बहुत से दोस्त लोग कभी कभी आपका मजाक उड़ाते हैं और आपको नहीं समझते आप में जो आशीर्वाद है, जो उजाला है, इस वक्त प्रभु समझ रहा है और भविष्यवक्ता आप पर भविष्यवाणी कर रहा है। वो उजाला आपके जीवन पर पड़ रहा है। जब वो उजाला आपके जीवन में पड़ता है, दुनिया भी देखेगी और दुनिया भी समझेगी क्या आशीर्वाद आपके जीवन पर प्रभु करने वाला है। आप फिसलते हुए बचे,
ये साल में आप, ये साल बोला तो गया साल, आज नया साल है, गए साल में फिसलते हुए बचे, प्रभु था आपको संभाला और प्रभु आगे भी आपको संभालेगा। हर एक बीमारी जो आपके जीवन पर आती है, हर महीने या हफ्ते दर हफ्ते बहुत बार आपको बहुत बीमार लगता है, तकलीफ होता है, पेट में कुछ प्रॉब्लम होता है, डाइजेशन प्रॉब्लम, इस वक्त प्रभु आपको छुटकारा दे रहा बहुत कुछ जीवन में है जो आप चाहते हैं। वचन में लिखा है जब प्रभु साथ हो तो सब कुछ मिलेगा। Amen. आप बहुत कुछ पूछते हैं, कभी माँ बाप से पूछते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है। प्रभु का हाथ पकड़िए, प्रभु सब कुछ देगा, टाइम टाइम पे सब कुछ होगा। Amen. या आपको इस वक्त या बहुत जरूरी है, जो आपको बहुत जरूरी चीज है वो है बुद्धि की। क्योंकि बुद्धि में जब आपके साथ बुद्धि रहती है तो सब कुछ बराबर होता है, पढ़ाई सब कुछ बराबर होता है। और इस वक्त आज आप कलीसिया में आए, प्रभु से बुद्धि मांगिए। जब आप बुद्धि मांगेंगे तो पढ़ाई करते हैं, कामकाज करते हैं, वो सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा और उससे आशीर्वाद आपके जीवन में। सोचने का जरूरत नहीं है, प्रभु को पता है उसने आपके लिए क्या योजना है। प्रभु दिखाते जब आपके माँ के आप पेट में थे, कोख में थे, कभी भी आपके माँ ने बहुत सी तकलीफ सहन की आपके लिए। उसने आसानी से नहीं निकले, आप आसानी से बाहर आए। प्रभु ने आपका नाम पुकार के आपके माँ की कोख से निकाला। योजना प्रभु आपके जीवन में रखता है और इसलिए आजकल क्या हो रहा है आपके जीवन में, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, ये मत भूलना कि प्रभु ने एक योजना से आपको आपके माँ के कोख से निकाला। इसने उसकी एक योजना रखी है। तो आज आप जो अपने जीवन में देख रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं, जो खालीपन देख रहे वो प्रभु भरेगा। दुनिया के नजर के अनुसार जीवन मत जियो, प्रभु के अनुसार जीवन जियो और देखो आपका जीवन वैसा का वैसा नहीं। प्रभु आपसे प्यार करता है और प्रभु आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाएगा। आप बहुत कुछ सोचते हैं, दुनिया देख के बहुत कुछ सोचते हैं, आपको बहुत कुछ करना है, बहुत चीज चाहिए। पहला प्रभु, वचन के अंदर पहला प्रभु और फिर सब कुछ। पहला प्रभु और फिर देखो आपके जीवन में और आपका घर कैसे प्रभु भर देगा। अपने हाथों को उठाइए इस वक्त, अपने हाथों को उठाइए और प्रभु के अधीन हो जाइए, सब कुछ प्रभु के चरणों पर समर्पित कीजिए। क्या प्रभु जो भी प्रभु ने कहा आपके बारे में, क्या ये सच है? प्रभु आपके जीवन पर आशीर्वाद देने वाला है और प्रभु सब कुछ, ये सब आंसू जो गिर रहे हैं, प्रभु उस सब आंसुओं को पकड़कर आपके जीवन पर आशीर्वाद का बरसात डालने वाला है। धन्यवाद करो, तालियां बजाकर प्रभु की स्तुति करो।